ویلکم بیک۔ اہم خبر دیں آپ کو، حکومت گرانے کا مشن، سیاسی رابطے تیز، بڑے سیاسی مخالفین طویل عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ شہباز شریف اور چودھری برادران کے درمیان 14 سال بعد ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چودھری برادران سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق بھی ساتھ موجود ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور رانا کامران ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی رانا کامران، کیا تفصیلات ہیں مزید اس حوالے سے؟ رانا کامران، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ رانا کامران، ملاقات ہے، ملاقات کے لیے پہنچ گئے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت حزب اختلاف جو قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی جناب میاں شہباز شریف تقریباً 14 سال کے بعد چودھری پرویز الہی کے گھر پہ ظہور الہی روڈ لاہور میں پہنچ چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو مولانا فضل الرحمان بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے پرویز الہی سے یہ بھی کہا تھا کہ کل شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے ان سے کوشش کرنی ہے کہ پرانے گلوے شکوے نہ کریں۔ آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تیمارداری کا بہانہ ہے، آج بیسیکلی جو میاں شہباز شریف وہ یہاں پہ آئے ہیں شجاعت حسین کی تیمارداری کے لیے، لیکن اصل جو مقصد ہے، جو اپوزیشن اس وقت ایکٹیو ہے اور جو بہت آپ کو انرجیٹک دکھائی دے رہی ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اپنی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنا۔ اس حوالے سے جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھی، اور اسی حوالے سے آج میاں شہباز شریف جو ہے وہ چودھری پرویز الہی سے بات کرنے آئے ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے وہ کیا آفر لے کے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے اور چودھری پرویز الہی کو کس طرح سے وہ کنوینس کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کا جو مدعا ہے آنے کا اور جو ان کا مقصد آنے کا وہ یہی ہے کہ آج وہ ان سے بات کریں گے اور کاف لیگ کو اس چیز کے لیے راضی کریں گے کہ وہ حکومت کے مخالف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں، اور جو مہنگائی کا ملک میں طوفان ہے، جو بد امنی ہے، اور اس حوالے سے وہ اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیں، اور یہی آج ان کے آنے کا مقصد ہے۔ رانا کامران، بتائیے گا، شہباز شریف کی چودھری برادران سے ملاقات ہے اور ماضی کے حریف اب ایک لمبے عرصے بعد مل گئے، پیپلز پارٹی سے بھی نون لیگ کی دوریاں کم ہو گئی، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ کتنا خطرہ ہو سکتا ہے حکومت کو، کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل حکومت اس وقت ڈیفینسو ہے، اور جو خاص کر جو چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کا جو ایکٹیو ہونا، اور کاف لیگ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ، آصف علی زرداری کا ملنا، اور اس کے بعد شہباز شریف کا خود یہاں پہ تشریف آنا، یقیناً یہ کسی اس کو آپ نظر انداز یا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ یقیناً چودھری پرویز الہی کا آنا اور ان کو ویلکم کرنا، اور آج کافی امید ہے کہ اس پہ کافی پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر دوسری طرف دیکھیں تو آج شام 7 بجے جو صدر آصف علی زرداری ہیں وہ بھی آج منصورہ میں جائیں گے، اور وہ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب سے ملاقات کریں گے۔ تو اپوزیشن جو تمام جماعتیں ہیں وہ ایک چیز پہ ان کا جو اتفاق ہے کہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس پر اب تمام جماعتوں کو، چودھری پرویز الہی اس سے پہلے یہ بیان بھی دے چکے ہیں کہ چونکہ کوئی بھی حکومت ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ لوگوں کے دکھوں کا ازالہ کرے اور عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اور انہوں نے یہ بھی، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ کاف لیگ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کبھی نرم گوشہ کوئی نہ کوئی اپوزیشن جماعتوں کے لیے رکھتی ہے، اور کبھی وقتاً فوقتاً وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ رانا کامران تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے جاری ری پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی۔ پشاور سمیت 4 صدہ، نوشہرہ، خیبر، محمد، مردان، کوہاٹ، کرک، بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، بونیر اور باجوڑ میں مجموعی طور پر 500 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عدنان شاہد سے۔ جی عدنان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں ہونے والی ری پولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پشاور اور خیبر پختونخوا کے اگر 13 اضلاع کی بات کریں تو اس میں مردان، 4 صدہ، نوشہرہ، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر کے کچھ علاقے تھے، ان میں ری پولنگ ہوئی تھی، کیونکہ جب پہلا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کا منعقد ہوا تھا تو یہ وہ علاقے تھے جہاں پر بدنظمی دیکھنے میں آئی تھی، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ ری پولنگ کا کال دی گئی تھی۔ تاہم آج خوش اسلوبی سے ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہم کور کر رہے تھے تو یہاں پر خوبصورت انداز میں جو تھی وہ پولنگ کی گئی۔ تاہم اگر پولنگ کی بات کریں تو ٹوٹل اوورال 13 لاکھ سے زائد جو افراد تھے انہوں نے اپنا حق رأی دہی استعمال کیا۔ اگر پشاور کی بات کریں تو پشاور میں بھی جو تھے 7 پولنگ سٹیشنز پر باقاعدہ طور پر پولنگ کی گئی۔ ایک بڑی تعداد میں جو خواتین، مرد ووٹرز جو تھے وہ نکلے اور اپنا حق رأی دہی استعمال کیا۔ صرف پشاور میں ہی 9402
200 अफराद ने अपना हक रई दई जो थे वो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद थी, जिनमें तकरीबन 4000 जो थे वो ख़वातीन, जबकि 5000 से ज़ायद जो थे वो मर्द हजरात अपना रजिस्टर्ड वोटर थे। टोटल अगर अवलाल बात की जाए तो 500 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में जो थे वो कायम किए गए थे। इसी तरह पेशावर में 7 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो थे वो कायम किए गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाके गुलबहार कादराबाद में। ये वो इलाका था जहाँ पर हालिया इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बदनज़मी देखने गई थी, तो यही वजह है कि तमाम तर जो पोलिंग बूथ थे वो एक ही स्टेशन में कायम किए गए थे। इस स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद थी वो तकरीबन 7500 थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। तो लंबा में पुलिस की मुद्दत में 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक कुल 62 अफराद जेर हिरासत हैं, जबकि मजीद गिरफ्तारियों के खिलाफ छापे जारी हैं। मकतूल के लवाहिकीन की तलाश भी जारी है। औस्ता मोहम्मद के इलाके गड़ी खैरों में मुसल्लह अफराद ने हमला करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। इलाका मकीनों में खौफो हरास फैल गया। मजीद खूनरेजी का भी खतरा है। गुजरात में फायरिंग के वाकयात में इजाफा होने लगा। डाकू ने नौजवान पर गोलियां चला दी। इंसानियत दम तोड़ने लगी। डाकू ने डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि मुल्जिमान मकतूल का मोटरसाइकिल भी साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मकतूल की बीवी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तेज रफ्तारी पड़ गई जान पर भारी। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 अफराद शदीद जख्मी हैं। हाफिजाबाद में तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में होशाब रोड पर डंपर और कार आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम के कई इलाकों में सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई के बोसीदा पाइप होने की वजह से इसमें शामिल हो रहा है, जिससे बीमारियां जन्म ले रही हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पीने का साफ पानी शहरियों की बुनियादी जरूरत है। साफ पानी पीने से जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। जेहलम के अक्सर इलाकों में सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइप लाइनों की वजह से आलूदा हो रहा है, जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। जेहलम की बात करें तो जेहलम में पानी जो है बहुत ही गंदा आ रहा है, जिसकी बारहा हमने अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन CO साहब को दरखास्त वगैरह भी दी हुई हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि साफ पानी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। गंदे पानी की वजह से बेशुमार बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो कीड़े हो सकते हैं पेट के, टाइफाइड, डायरिया, हैज़ा और बेशुमार बीमारियां ऐसी हो सकती हैं कि जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। इसलिए पानी तो ज़रूर साफ़ होना चाहिए। अगर यही सूरत हाल रही तो साल से पड़ी ये वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइप लाइनें मजीद साफ पानी शहरियों को फराहम करने के लिए नकारा हो चुकी हैं। अरबाब इख्तियार को फौरी और ठोस इक़दाम करने होंगे ताकि जेहलम के शहरों को साफ पानी मुयसर आ सके, जो कि जिस्म के लिए एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि साफ पानी पीने से ही जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। साफ पानी इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुज़र सेहत पानी पीने से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। चकवाल में बनाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। इंसानी सेहत के लिए पानी निहायत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। गंदा और मुज़र सेहत पानी से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है और इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि जो सेहत के लिए जो है वो ज़रूरी वाटर है, वो सेफ़ वाटर है। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारे पेट के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे जरासीम होते हैं जो कि हमारे पेट को ख़राब करते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है लोगों को। ठीक है, और दूसरे मुख्तलिफ जो हैं वो गुर्दों के मसाइल भी जो है इससे पैदा हो सकते हैं। वाल में बनाए गए साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा पड़े हैं, जिससे शहरी मैदा, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस और दीगर मुज़ी अमराज का शिकार हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल।
आरिफ वाला में फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया, जिसके बाद शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। शहरियों ने इंतजामिया से नया फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीद अहमद खरल। शहर और गिरदोनवा में फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से गंदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी एरिया में 16 फिल्ट्रेशन प्लांट फाल हैं। गिरदोनवा इलाकों में कबूला, मरले, मुख्तलिफ चकूक और कस्बात के फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है। इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मियां अजहर तारिक वट्टू का सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक तहसील आरिफ वाला में जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी बाकायदा सफाई का ख्याल रखा जाता है, उनके बाकायदगी से फिल्टर चेंज किए जाते हैं। इनका कहना है कि हमने शिकायत सेल बना दिया है, जहां फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला हो हमारी टीमें वहां फौरी पहुंचेगी। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मुल्तान के शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर न होने से मसाइल का सामना है। सरकारी इदारे भी शहर की ज़रूरत के मुताबिक साफ पानी की फराहमी यकीनी ना बना सके। अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। ओलिया के शहर के बासियों के लिए साफ पानी सरकारी तौर पर मैसर नहीं हो रहा। शहर की 25 लाख आबादी के लिए 165 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, जो आबादी की जरूरत से बहुत कम है। पेनाफ्लेक्स लगा दी गई है जिसके ऊपर 1.5 दर्ज है कि इसका फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, फिल्टर जो है फलां तारीख को ये तब्दील हुआ था और 2 महीने बाद फलां तारीख को दोबारा तब्दील किया जाएगा। साथ एक कंप्लेंट के लिए नंबर भी दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी थे 68 फिल्ट्रेशन प्लांट थे, उसमें से 29 जो है वो नॉन फंक्शनल थे। उनको फंक्शनल करने के हवाले से टेंडरिंग उसकी हो चुकी है। जल्दी इंशाल्लाह विदिन 2 मंथ जो है उनको भी फंक्शनल कर दिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि 68 फिल्ट्रेशन प्लांट जो खराब थे उनमें से 29 को जल्द फाल कर दिया जाएगा। यहाँ जो भी रिहायशी है, मोहल्लेदार वगैरह, दूर जाना पड़ता है। कभी कभार अगर हमारे पास सवारी नहीं है, तंग हो रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कम से कम इतनी सहूलियात यहाँ पे दें कि कुछ हो सके। काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से ना पानी भरती थी और अब मुझे ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब दूर से जाकर ना पानी भरना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि साफ पानी फराहम करने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साफ पानी लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। शहर में साफ पानी की फराहमी के लिए प्राइवेट सेक्टर अपने प्लांट लगाकर पानी फरोख्त कर रहा है। साफ पानी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी और शहरियों का बुनियादी हक है। इस पर हुकूमत को तवज्जो देना होगी। कैमरामैन मोहम्मद रमज़ान के साथ अहमद खान, सच न्यूज़ मुल्तान। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शाहकोट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा फाल ना हो सका। शहरी महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली भट्टी। शाहकोट में 30 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन का मंसूबा फाल नहीं किया जा सका। शहर में बिछाई जाने वाली कंक्रीट की पाइप जगह जगह से टूट चुकी है। नस्ब मशीनरी जंग आलूद हो गई। शहरी दूर दराज नहरों और प्राइवेट प्लांट से पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया की नाहली और जो है इसका मुंह बोलता सबूत है। 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये मंसूबा जो है अभी तक फाल नहीं किया जा सका। और इस सिलसिला में बारहा म्यूनसिपल कमेटी को भी कहा गया है, लेकिन ये शहरी जो है वो दूर दराज नहरों से और प्राइवेट जो प्लांट्स हैं वहाँ से पानी लाने पर मजबूर है। म्यूनसिपल कमेटी, महकमा पब्लिक हेल्थ ठेकेदार और जिली इंतजामिया समेत कोई भी इदारा इस संगीन नाहली की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मुख्तसरन ये कि इस अहम तरीन मंसूबे पर खर्च किए जाने वाले 23 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। डुडियाल में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम की धज्जियां बिखेर दी गई। महकमा जंगलात की अराजी से शीशम और किकर की कीमती दरख्तों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अली। तब्दीली सरकार में एक तरफ ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का नारा, दूसरी तरफ डुडियाल में 120 कनाल से जायद महकमे जंगलात की अराजी से शीशम और कीकर के कीमती दरख्तों की कटाई धड़ल्ले से जारी। महकमा की तरफ से देखभाल न होने की वजह से दरख्तों की कटाई का अमल जारी है, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जाती है। डुडियाल थाना के साथ जो ज़मीन है महकमा जंगलात की है, तकरीबन 130 से 135 कनाल का रकबा है। इसमें काफ़ी जंगल की लोग कटाई कर रहे हैं। दरख्त बहुत पुराने दरख्त हैं, कटाई कर रहे हैं और इनका सद्देबाब किया जाए और ज़मीन का भी कटाव कर रहे हैं। साथ ही ज़मीनों में, अपनी ज़मीनों में ये ज़मीन मिला रहे हैं। तो महकमे वालों से अपील है कि वो इसका नोटिस लें
और बर वक्त कार्रवाई करें। महकमा जंगलात के जिम्मेदारान को चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर शीशम और कीकर जैसे कीमती दरख्तों को बचाया जाए ताकि माहौल को साफ और शफाफ रखने में मदद मिल सके। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली, सच न्यूज़, डोडियाल। टंडो जाम और खैरपुर में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। आवारा कुत्तों ने 16 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया। टंडो जाम के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन न होने के बायस लवाहिकीन बच्चे को घर वापस ले आए। बुरसा का कहना था कि सड़कों पर आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं। शहर में खौफ व हरास फैल गया। बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों ने इंतजामिया से कुत्तों को तलब करने और अस्पताल में वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।